So, what is birth and what is death? So, they defined it like this: the association of the Atma with the body is birth, and the dissociation of Atma with the body is death. When the subtle body and this they identify with this body, then it will travel from one body to another. कब तक? Is it there is no chance of this transmigration to stop? ये कब तक एक से दूसरे दूसरे बॉडी से योनि भी बदलती है. Not only that we will get a human body only, as per our karma we will get the body. So ये कब तक, this truth is for how long? Or is it inevitable for everybody? Yeah, Asha wanted to say something. Well, this journey, if suppose we wish that enough of this going from one body to another body, no, I don't want this, new more experiences. So when is there any solution for that? That is what I'm asking. Can it be like when we will meet the Paramatma which is residing inside us, and then we will go to that place where our identity will not be existent and we will be part, we are already part, but realizing We'll and realize. moving towards it. Yeah, correct. So जिसको हम लोग मोक्ष बोलते हैं ना, जिसको That's हम लोग really- हाँ, जिसको निर्वाण बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि ये जीवन मरण के चक्कर से हम छूट गए. तो when the conditioned soul, which is conditioned in that this body, realizes that I am not conditioned, actually I am akhanda, तो फिर वो ये जो सूक्ष्म शरीर है ना वो भी डिसॉल्व हो जाता है. तो ये जो इधर से उधर जाता है ना, स्थूल शरीर का तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो खत्म ही होता है डेथ के साथ. इवन द सूक्ष्म शरीर वो भी डिसॉल्व होता है, एंड देन दैट इज नोन एज द मुक्ति. फिर ये हमारा इधर से उधर जाने का चक्कर, एंड व्हाट दैट इज आवर aim, that is our goal of life. Therefore we are studying Bhagavad Gita, because it is a moksha shastra. Gita will teach us how to reach that state, step by step. So भगवान बोलते हैं, तो ये एक दूसरी दृष्टि है ना. तो at the व्यवहारिक level we see that people are every day there are so many births, so many deaths are there, and what happens? And two things which you will find common in all the Sanatan Dharma Pantha, whether it is Buddhism, Jainism, Sikhism, or Vaishnavite, Shaivite, so many different Pantha. All of us, some of us don't believe in Paramatma, like Buddhism, Jainism, they are Nirishwarvadi, they don't have the concept of Ishwar. But everyone will believe in theory of karma, that is Karmavad, and rebirth. This too is common to all of us, like the Sanatan Dharmi. In Abrahamic religion, it is not so. They have only one birth. I have not read much about them, but what I know that the Islam and the Christianity, they have one birth. They don't have this concept of rebirth. God created you, and then when you die, you have to wait for the day of judgment, and then you will either go to permanent hell or permanent heaven as per your karma. That is what they. But here we believe that Dehi जो है, the one who is the owner of this body, वो एक के बाद एक अपना जर्नी कंटिन्यू करता है. एक कपड़ा पुराना हो गया तो इसको उतार देता है, फिर नया कपड़ा पहनता है. दिस वी हैव स्टडीड इवन इन गीता. एंड देन देयर इज थर्ड दृष्टि, which also will come in Gita, and which is Loka Drishti. I told you about the philosopher Charvak. In India, we had a philosopher Charvak. You know what is the meaning of Charvak?
मतलब बहुत स्वीट लगता है, कान को सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और ही वॉज अ वेरी स्वीट टॉकर, ही वॉज लाइक अ पाइट पाइपर, उसके पीछे बहुत लोग घूमते थे। चारवाक वॉज अ वेरी फेमस फिलोसोफर, बिकॉज वो जो बोलता था वो लोगों को बहुत सूट होता है। इट सूट्स अस, व्हाट ही सेज दैट देयर इज नो आत्मा, दिस बॉडी, इफ यू कॉल इट आत्मा, ये बर्थ होता है इसका, और फिर एक बार डेथ हो गया तो दैट्स इट, द स्टोरी एंड्स। तो उसका फिलॉसफी था, खाओ पियो मौज करो, कर्जा लेके घी पियो और फिर मर जाओ। तो बोला, अरे लेकिन कर्जा लेके घी पियो, घी पियो मतलब आजकल का आपको जो भी पीना है अच्छा अच्छा पियो एंड मर जाओ। तो बोला, लेकिन फिर हमारे बच्चों के ऊपर कर्जा आएगा ना, उनको देना पड़ेगा, मैंने दे विल हैव टू रीपे ना, हु केयर्स, आई मीन हाउ डज इट मैटर, बिकॉज आई एम डेड एंड गॉन फॉर गुड। तो ये भी एक फिलॉसफी है। नो सी वी फील, हमको ये जब सुनते हैं ना कि आत्मा शरीर के साथ पैदा हुआ मर गया, खाओ पियो मौज करो, कुछ नहीं होता है, देयर इज़ नो, बिकॉज वी आर नॉट कमिंग बैक, तो हमको अपने कर्मों का फल भोगने का कोई सवाल नहीं है। वी फील दैट दिस इज रिडिकुलस एंड I have sent the link, na? Asha, please send the link to Mahalakshmi. Yes. She is asking for the link. रंजना, एक बार वो गीता ग्रुप में लिंक वापस भेज दो। Okay. हाँ, वो या शी गॉट इट, आई थिंक मैंने भेजा। तो बट इफ यू थिंक deeply, many of us, many of us, even in our country, which is supposed to be religious and Sanatani, many of us believe this, Lokadrishti, खाओ पियो मौज करो, किसने देखा है? Otherwise, how can you explain the corruption? How can you explain the consumerism? Because see, if I consume more from the nature, if I exploit nature, that means मैंने अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ा नहीं ना, आई एम टेकिंग देयर शेयर. So this idea that who knows and who cares, let me amass wealth by hook or crook and let me die, and this when people live like this, unke definitely heart, in their deep heart, they have this philosophy of Charvak. It's still alive and I think very very common. सो भगवान ने पहले तो पारमार्थिक बताया आत्मा की बात बताया, वो इट इट डिडंट ब्रेक द आइस, मतलब अर्जुन के फेस पे कुछ चमक आई नहीं, मतलब अर्जुन वाज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट नॉलेज. ओ लॉर्ड, यू हैव गिवन मी अल्टीमेट नॉलेज, बट just like us. So then now today he is coming to our level, and then Gita will not leave us. Gita doesn't talk much about the tattva. It is there in many of our texts and Upanishad, but Gita is a practical Vedanta. Na? How should I lead my life? मेरा प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व करूँ, वो मुझे बताओ. So it will talk of karma yoga, it will talk of bhakti yoga, it will talk of raja yoga, it will talk of dhyana. Everything will come in Gita. So भगवान ने देखा मैंने इतना मेहनत से इतना हाईएस्ट नॉलेज दिया अर्जुन को, एंड अर्जुन was supposed to be a very deserving शिष्य, much higher level than many of us, in any generation, because he was a real evolved soul. तो भगवान ने उसके आगे ये सब बताया, फिर भी देखा कि बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ. तो ही इज़ अ जगत गुरु, इज़ अ वेरी गुड टीचर, एंड वी एज टीचर्स वी नो दैट, इसके लिए बहुत टेलीपैथी का ज़रूरत नहीं है. यू लुक एट द फेसेस ऑफ योर स्टूडेंट्स एंड यू नो दैट एवरीथिंग इज बाउंसर. इन माई केमिस्ट्री क्लास, some of the days, when I have to explain, especially in MSc classes, some difficult concept, and after, I
I have prepared it very well and I have given a very nice lecture, but I can make out that it's a complete bouncer for the class. उन कुछ भी समझ में नहीं आया. So at the end of the class, ना very sincerely, I used to apologize. मैंने बोला मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैंने तो अपने हिसाब से बहुत अच्छी तरह आपको समझा नहीं, लेकिन I could make out that कुछ भी समझ में नहीं आया. So if you are teaching calculus to somebody who doesn't know the basic algebra and the basic geometry, तो कैसा होगा ना. तो ऐसा होता है कभी कभी. तो ऐसा ही हमारा भी हाल हुआ. तो अभी भगवान वर्स 26, दिस वी विल अंडरस्टैंड, ये हमको समझ में आएगा. देखो अभी भगवान क्या बोलते हैं. फिर भी उनका ध्रुव पद है नैवम शोचितुम अर्हसि. नाउ आई एम टॉकिंग एट योर लेवल, बट स्टिल शोक मत करो बेटा, परेशान मत हो. दिस इज व्हाट रियल, एज अ रियल मदर एंड रियल फादर. इसलिए गीता को माँ बोलते हैं. गीता इज अ मदर, एंड महात्मा गांधी यूज्ड टू से दैट कितना भी डार्क फेज मेरे लाइफ का रहा, and when there are no answers from anywhere, and I will turn pages of the Gita, and I used to get my answer, and I used to get the ray of hope and the light. So Gita is a mother, so she will guide us. So if you have Bhagavad Gita, please see verse 26 of chapter 2. अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि. Verse 26. Now, as eternally born or eternally dying, if you consider this, even then, O Arjuna, you should not mourn for this. मतलब अगर तुमको वो फिलॉसफी समझ में नहीं आई और तुमको ऐसा लगता है चारवाक की तरह कि ये आत्मा शरीर के साथ ही पैदा हुआ, शरीर के साथ मर गया, तो भी तुमको रोना नहीं है. अब क्यों नहीं रोना है? तो मैं हिंदी में इसका ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ. वर्स 26. This translation by Tejomayanand is so beautiful, I find it very, very apt. For every verse, he has given translation in Hindi, and बहुत ही अच्छा है. आप देखिए एक एक वर्ड को लेते हैं और इतना सिंपल हिंदी में बताते हैं. So he says that, और यदि तुम आत्मा को नित्य जन्मने और नित्य मरने वाला मानो, इटर्नली इट इज टेकिंग बर्थ एंड इट इज डाइंग, मतलब ये इटर्नल साइकिल है. यदि तुम आत्मा को नित्य जन्मने वाला और नित्य मरने वाला मानो, सपोज, मतलब इट्स नॉट ट्रू, बट सपोज यू फील लाइक दैट, सपोज इट इज योर बिलीफ, सपोज यू अंडरस्टैंड इट लाइक दैट, तो भी हे महाबाहो. नाउ ही इज रिमाइंडिंग अर्जुन दैट अरे तुम महाबाहो हो, जिसकी भुजा होती है, बोलते हैं जिसका लेंथ ऑफ द दिस घुटने के नीचे आता है, उसको महाबाहो बोलते हैं. जैसे हमारे राम जी का है, जैसे हमारे गांधी जी का है, तो दे आर नोन एज महाबाहो. बहुत सारा पुण्य उनके हाथ से होता है. तो तुम आत्मा को नित्य जन्मने और नित्य मरने वाला मानो, तो भी हे महाबाहो, इस प्रकार शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है. मतलब अगर तुम ऐसा मानते हो कि शरीर के साथ ही आत्मा पैदा हुआ और शरीर के साथ आत्मा मर गया, ऐसा जैसे लोग समझते हैं, तो फिर भी शोक नहीं करना. नाउ टेल मी व्हाई. ये तो समझ में आया ना, इसमें तो ज़्यादा कुछ फिलॉसफी नहीं है. ये तो हमारा जो डे टू डे एक्सपीरियंस है वो. यू सी पीपल टेकिंग बर्थ एंड यू सी पीपल डाइंग. फिर भी ऐसा भी समझते हो तो भी तुमको शोक नहीं करना है. गिव मी वन रीज़न क्यों नहीं करना. अरे आंटी, जो जन्मा है उसका उसकी मृत्यु तो निश्चित है. हाँ, ठीक है ना. दिस इज लॉ ऑफ नेचर. सो इफ यू से दैट नो व्हाई इट इज लाइक दिस, विल वी गेट द आंसर? विल ब्रेक आवर हेड अगेंस्ट द वॉल.
तो इट इज़ लाइक फायर हॉट क्यों है, जल ऐसा क्यों है, नमक सॉल्टी क्यों है, शुगर में स्वीट क्यों है, ऐसा ही है। कैसा है, जो पैदा हुआ वो मरेगा। And you know how we can come out of shock? We can come out of shock when we take things too personally. It has happened with me. I lost so and so, and we feel untimely. मतलब हमको ऐसा लगता है untimely. Nothing in untimely happens in the nature. But we feel like that. तो भी आपको शोक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ऐसा सभी के साथ होता है। हैज़ इट हैपेंड ओनली विद मी, और मेरे साथ ही हुआ, या ये यूनिवर्सल लॉ है फॉर एवरीबडी, इट इज़ लाइक दैट। द मोमेंट यू सी लाइक दैट, द विजन एक्सपांड होता है, तो मैं मेरा प्रॉब्लम ना थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है, इजंट इट? Because of this reason, you all have that story of that lady who lost her young child, son died, and in that village Gautam Buddha was there. So everybody said बड़े महात्मा हैं, चमत्कारी महात्मा हैं, तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर सकते हैं। तो वो रोते हुए अपने बच्चे को लेके आके बुद्ध के पास लेके आई। हाँ, कंप्लीट द स्टोरी, एवरीबडी नोज द स्टोरी। तो उन्होंने बोला था, गौतम बुद्धा के पास गई तो उन्होंने बोला तुम भिक्षा लेके आओ या कुछ लेके आओ ऐसे घर से जहाँ कभी कोई डेथ ही नहीं हुआ हो। तो उसे भी ऐसा घर नहीं मिला। हाँ, तो उसको उन्होंने कहा कि तुम राई से करते ना, मतलब जंतर मंतर ऐसा राई सरसों से करते ना, सरसों और मिर्चा। तो उन्होंने कहा हाँ मैं कर दूंगा, मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा। द ओनली कंडीशन इज यू गेट द राई फ्रॉम अ हाउस जहाँ पे कोई डेथ ना हुई हो। शी सेड इट इज़ वेरी सिंपल, अभी लेके आती हूँ। तो वो गई नॉक करती है हर घर में, सब लोग राई देने को तुरंत तैयार है, अरे इसका बच्चा जिंदा हो जाएगा। बट देन शी आस्क्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपके घर में कोई डेथ तो नहीं हुई है? डेथ तो हुई है, ऐसे तो कोई घर मिला ही नहीं। And then by evening she's tired and she comes to Buddha and she said, I understood. So ये जो इनएविटेबल है और सबके साथ होता है। It's not that I am specially chosen for this treatment. Anybody who is born will die. तो अगर ऐसा थोड़ा सोचेंगे ना, तब भी आप शोक नहीं करेंगे। ठीक है, ये एकदम इस लेवल की बात किया भगवान ने, जो चारवाक या मेरा ये मानना है कि many of us believe this. अदरवाइज आप कैसे करप्शन कर सकते हैं? अदरवाइज आप कैसे किसी को कष्ट दे सकते हैं? इफ़ यू बिलीव इन थियोरी ऑफ कर्मा, इफ़ यू बिलीव इन रीबर्थ, इफ़ यू बिलीव दैट देयर इज परमात्मा हु इज वॉचिंग, हाउ कैन यू डू रॉन्ग थिंग? वी डू इट बिकॉज वी बिलीव दिस। क्या खाओ पियो, कुछ नहीं होता है, कौन देखता है, मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। तो भगवान कहते ठीक है, तुम उस लेवल पे भी जीते हो तो भी मरने का शोक मत करो, क्योंकि वो सबके साथ आता है। करेक्ट। एंड देन वर्स 27, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येते न त्वं शोचितुम् अर्हसि। देखो वापस वही बोला, शोक मत करो। अगर ये समझ में नहीं आता, दूसरी बात बताते हैं। दूसरी बात क्या बताते हैं? 27, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। आपको भी समझ में आ रहा होगा, इट्स इजी संस्कृत। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो पैदा हुआ है, जात मतलब जो पैदा हुआ है, ध्रुव मतलब 100%, ट्रुथ। व्हाट इज ट्रुथ फॉर हिम? जो पैदा हुआ है वो, बोलिए, पूरा कीजिए। जो पैदा हुआ है वो मृत्यु को प्राप्त होगा। मृत्यु को प्राप्त होगा। वेरी गुड। मरेगा, मृत्यु।
बार बार इसको याद रखना है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा। एनीथिंग और एनी बीइंग which is born will die. And what is the next line? Dhruvam इसलिए janmamritasya cha. What is that? after death there will be again rebirth. या ध्रुवम जन्म, जो मरा है वो फिर पैदा हो। द वर्ल्ड इज साइक्लिक ना, द वर्ल्ड इज साइक्लिक, बर्थ डेथ देन अगेन बर्थ देन अगेन डेथ, ये चलता है। तो ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ये किस लेवल से बात कर रहे हैं? ये भगवान सूक्ष्म शरीर मतलब देही के बात कर रहे हैं, जो एक देह से दूसरे देह में जाता है ना, मर गया फिर उसका जर्नी खत्म नहीं हो गया। विद ऑल हिज डिजायर, विद ऑल आवर कामना, विद ऑल आवर पाप एंड पुण्य, वी विल गेट अ न्यू बॉडी, जिसको हम थियोरी ऑफ कर्मा बोलते हैं, कर्मवाद बोलते हैं। कर्मवाद से रीबर्थ लिंक्ड है। तो वो भगवान बोलते हैं अगर तुम ऐसा भी समझते हो, दिस इज द सेकेंड अंडरस्टैंडिंग, बोथ आर relative understanding. It is not the absolute truth. What is the absolute truth? What is the absolute truth about Atma? Imperishable, never dies. It is Never born. It is never born and it never dies. So, लेकिन भगवान कहते हैं अगर तुम ऐसा भी सोचते हो कि ये मर गया और फिर जो पैदा हुआ वो मरेगा, लेकिन जो मरेगा वो फिर से पैदा होता है, तस्माद अपरिहार्य थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपरिहार्य? It cannot change. Inevitable, हाँ, inevitable. So for the born, death is certain, and for the dead, birth is certain. So for what is inevitable, you shouldn't mourn. जो होने ही वाला है, जो अशक्य है, जिसके बारे में हम चेंज नहीं कर सकते, उसके बारे में रो के आपको क्या मिलने वाला है? सो वर्स 27 हिंदी पढ़ती हूँ। जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। स्टिल डोंट क्राई अबाउट इट। ठीक है? ये हमारा लाइफ और डेथ है ना, ये पैकेज डील है। the day we are born, death is, we are approaching towards our death. It's a fact of life. And if you'll see the video of Chinmayananda on this shlok, in his typical style, how Chinmayananda used to speak, he says, where have all your forefathers and fathers and mothers, matlab for older people like us, where have they gone? They all are dead. And where are you going? You are in the queue, following them. So it is inevitable. तो मतलब ये पैकेज डील है ना। हम see, we get it logically. It's not that we don't understand it, but we don't get it emotionally. So वो हमको अपने इमोशंस को समझाना है, भावना। Intellectually, logically, yes. So world will not run as we want. We say that why there is law of gravitation, I want to go up in the sky, I don't want to come down like this, why earth is holding. ये सब बात का कोई logic नहीं है. It is like that, and this physical laws are there and we have to conduct our life accordingly. So, and भगवान बोलते grow up, don't cry like a baby, थोड़ा सा बड़े हो जाओ, with more grace and acceptance deal death. ऐसा बोलते हैं ना, दुनिया में एक ही चीज सर्टन है, वो है डेथ।
about our future when we think and we plan, we may have hundreds of things, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, and we don't know whether it will happen or not. But one thing is certain, I'm going to die. Not only that, what they say is, प्रारब्ध जो है उससे हमको ये शरीर मिला है, प्रारब्ध कर्म से. सो सर्टन थिंग्स ना मोटा मोटा इज रिटन, इट्स देयर. द हेल्थ हमारा कैसा होगा, लाइफ स्पैन, द अमाउंट ऑफ वेल्थ दैट विल हैव, इट्स ऑल देयर. इसमें फ्री विल किधर है? फ्री विल है ये जो हम पढ़ रहे हैं. फ्री विल है, यू हैव गॉट दिस ह्यूमन बर्थ टू अंडरस्टैंड that I have to come out of this cycle, enough of it, so, and there is a way. ऐसा नहीं है कि ऐसा ही है, इसमें से हम बाहर ही नहीं आ सकते. तो युधिष्ठिर, आप लोगों को वो महाभारत की स्टोरी पता होगी ना, युधिष्ठिर के जब सब पांचों पांडव पानी पी के एक करके मर गए हैं, और फिर जब युधिष्ठिर जाते हैं तो वो यक्ष बोलता है मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ, उसके उत्तर दो, और सही उत्तर दोगे तो तुम्हारे भाइयों को मैं जिंदा करूँगा. तो वो यक्ष के प्रश्न में उसका प्रश्न है, युधिष्ठिर को पूछता है, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो क्या बताया युधिष्ठिर ने? People die every day, but still they feel that they are Amar. रोज लोग मर रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ मैं नहीं मरूंगा. There is a very famous doctor in Maharashtra, and I have great respect and regard for him, Dr. Abhay Bang. He has won many awards, and he has written many books also, and does lot of social work. His wife Rani Bang and Dr. Abhay Bang in Gadchiroli in Maharashtra. So एक बार उनका मैंने लेक्चर अटेंड किया ठाणे में, रंगायतन हॉल में. So he had an heart attack, Dr. Abhay Bang, and after that heart attack, he changed his lifestyle, his entire thinking, and then he has written a book. उसका नाम है माझा आत्म साक्षात्कारी हृदय रोग. दैट मीन्स हृदय रोग से मुझे आत्म साक्षात्कार हुआ, ऐसा उनका वो बुक है. तो एंड इज अ एक्सलेंट ओरेटर. So, the hall was packed. We all were sitting and looking at him and listening. And, he was describing how it happened and, his heart attack, this, that. And then he gave a pause. And then he's telling, everybody was sitting in the hall is thinking that, I know one of my friend, I know one of my relative, जिसको ये heart attack आने वाला है, लेकिन मुझे नहीं. Like everybody is looking at the others and thinking that no, मुझे नहीं होने वाला है. So he said that death inevitable है और ये किसी को भी हो सकता है. So बट ऐसा कुछ क्या बोले उसको, माया बोलो या हमारा ज्ञान बोलो, या कुछ एक फोर्स है यूनिवर्स में जो हमको ये बोलता है नहीं, डोंट थिंक ऑफ दैट. I have seen many of my friends and relatives, when we sit for tea or coffee, and the moment कुछ ऐसा बात आएगी ना, they will say, क्या बात करती है, छोड़ उसको ना, खाओ पियो मौज करो, जब आएगा तब देखेंगे. So one of my friend called up from Mumbai. After many years we were talking. A chemistry lecturer, retired, husband and wife, दोनों बहुत घूमते हैं पूरा इंडिया को, क्या कहते हैं उसको, बाय रोड, एंड ग्रेट ट्रैवलर्स एंड ग्रेट ब्लॉगर्स एंड ग्रेट फोटो कलेक्शन एंड ऑल, दे शेयर. आई एंजॉय दैट. सो वो कह रही थी कि मेरे मामा जी थोड़े बूढ़े हो गए हैं, तो उसको कान से सुनाई नहीं देता, बेटा अमेरिका में है, अकेले रहता है, एंड ऑल दैट शी वाज. सो तो आई टोल्ड हर कि हाँ, हम सब की वो स्टोरी है, हम उधर ही पढ़ रहे हैं. ए मत बोल रहे ऐसा, अभी टाइम है ना. तो हम सोचते हैं कि नहीं वो मतलब होगा तो देखेंगे ना. दैट वे आई एम नॉट सेइंग दैट वी शुड गेट डिप्रेस्ड बाय थिंकिंग ऑफ दैट, बट वो एक फैक्ट है ना.
वो एक फैक्ट ऑफ लाइफ है, तो हम बोलते उसकी बात मत करो, तो भगवान बोलते हैं चलो मान लिया ऐसा, तो भी तुम रो मत, कम से कम रो मत, ये समझ में आया तो भी अच्छा है। तो वर्स 28 इज कंटिन्यूइंग। थोड़ा फिलॉसफी फिर थोड़ा डीप होती जाती है। ये 2 श्लोक में भगवान ने आत्मा जो जैसा हम समझते हैं उस हिसाब से बताया, नॉट एग्जैक्टली द ट्रुथ बट व्यवहारिक ट्रुथ। देन वर्स 28, नाउ ही इज सेइंग अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यैव तत्र का परिदेवना। ही इज सेइंग दैट beings are unmanifested at first and then manifested in the middle and again unmanifested at the end. So what grief can there be regarding this? अगर अपनी लाइफ को देखें, we were not there in the universe. One particular fine day टपक पड़े, कहाँ से आए मालूम नहीं, पेरेंट्स को भी मालूम नहीं, कहीं से टपक पड़े। तो अव्यक्त से आ गए। अव्यक्त मतलब कौन? परमात्मा। हमारा सोर्स तो वही है। तो बोले वहाँ आप पहले अनमैनिफेस्टेड थे, वन फाइन डे यू हैव कम एंड देन द वर्ल्ड इज सीइंग योर ग्लोरी एंड योर आपका ब्यूटी, आपका काम सब देख रहे। फिर एक वन फाइन डे आप फिर डिसअपियर हो जाएंगे, आप अनमैनिफेस्ट हो जाएंगे, है कि नहीं? So when Shakespeare says that the world is a stage, it's a fact. We all come, वो फिर sunrise के जैसा हमारा birth होता है, फिर we grow, and then when we are in our 30s and we are like a 12 बजे का sun, the maximum ability to work and to do, and then फिर ढलता है, सूरज ढलता है, और फिर सूरज ढल के अस्त होता है। सूरज कभी रोया नहीं कि मैं तो अस्त हो जाता हूँ, अभी तो मैं उगा था, अभी तो मेरा इतना ग्लोरी था, और अभी मेरा इतना। सो इट इज़ द स्टोरी फॉर ईच वन ऑफ अस। इफ वी सी अवर लाइफ, भज गोविंदम में आचार्य शंकर पूछते हैं ना, ये प्रश्न पूछना चाहिए कि कहाँ से आया मैं और कहाँ जा रहा हूँ, और ये मैनिफेस्ट जो हो गया इसका पर्पस क्या है? खाओ पियो मौज करो यही पर्पस है क्या? सो इट्स लाइक इफ यू सिट, समुद्र के किनारे बैठो तो समुद्र की लहर आई, समुद्र में से निकली, फिर आई कोई छोटी लहर, कोई बड़ी लहर, कोई बहुत बड़ी लहर, कोई सुनामी, बट फाइनली कहाँ से आई? उसी समुद्र के पानी से आई, उठी और फिर गई, और किधर गई? उसी समुद्र। सो ये जो एहसास है ना कि आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई हैव मैनिफेस्टेड फ्रॉम परमात्मा, व्हेन आई एम देयर आई एम सस्टेन्ड बाय हिम, एंड व्हेन आई विल नॉट बी देयर आई विल बी गोइंग बैक टू हिम, जैसे हम रोज रात में नींद में करते हैं। तो फिर इसमें रोने का क्या बात है? रोने का कोई बात? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, थोड़े दिन के खेल है, थोड़े दिन बीच में आ गए, फिर अव्यक्त हो जाएंगे। हाँ, तो क्या है? मृत्यु की अनिवार्यता, ये आज हमने डिस्कस किया है ना। हे भारत, समस्त प्राणी जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, अनमैनिफेस्ट, और बीच में व्यक्त होते हैं। We are always there, with all our sanskars in a बीज रूप, we are there, and then we manifest. और फिर उसमें चिंता या शोक की क्या बात है?